Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BVD IITM Lucknow. In this lecture series, we are studying about foundation design. Today's topic is introduction to well foundation. Basically, in our previous lectures, we have studied about different types of cation. Cation is a initial phase of construction for a well foundation, and in that lecture, in the previous two lectures, we have discussed about different types of cation and design of cation. Basically, the well foundation is a modified form of open cation. We know that the open cation is an box type or a cylindrical type of rigid wall or rigid member, which is open from both top and bottom. Okay. So, that basically what is the main purpose of cation? The main purpose of cation is to restrict the water inflow into the area where we are constructing the foundation, where we have to construct a foundation. So, what does cation do? So, cation basically, suppose this is the river stream, this is the river stream, and we have to construct a bridge between this downstream and this upstream. We have to construct a bridge between A and B point. Okay. To for construction of a bridge between A and B point, we have to install up some pillar or some foundation. So, suppose let us we have to install the foundation over there, over this point. This is the point where we have to install the foundation. This is the point where you have to install the foundation. So, before installation of foundation is not easy, because this is a flowing river. So, there is a permanent inflow of water over there. So, the cation is a rigid one, like this member. This is like this. It is an rigid member. It is a rigid member. It is a watertight member. So, we installed cation over there, and cation, what will the cation do? The cation will restrict the inflow of water into this inside this chamber, restrict the inflow of water inside this. Then what will happen after installation of cation? Suppose we have installed the cation over there. Suppose we have installed the cation, the water will flow like this along the periphery of cation, not through the cation. Okay. So, that is the main purpose of cation. So, what is the need of study of cation before starting of well foundation? The main purpose, the main motto of studying the cation before starting the well foundation is that the well foundation is the basically the modified form, modified form of cation, open cation. Well foundation is the modified form of open cation. So, what do we mean by well foundation? Well foundation are the types of deep foundation provide a solid and massive foundation, typically for bridge and heavy structure. Wherever there is a construction of bridge or any hydraulic structure, suppose a dam, so there is the use of well foundation over there for installation of foundation. So, okay. So, well foundation is generally a deep foundation, not a shallow foundation. What is deep and shallow foundation? It is a very simple differentiation, that for a shallow foundation, df by b, it should be less than equal to 1. What is df? df is the depth of foundation and b is the width of foundation, and it should be less than equal to 1. And for deep foundation, this condition will be reverse, that df upon b, it is greater than 1. This is the case of for deep foundation. This is the case for deep foundation. Okay. So, well foundation is a type of deep foundation. Well foundation is a type of deep foundation. Okay. The next point is that well foundation are also useful for transmission of line tower where uplift load are large. Basically whenever the electricity is supplied to power grid, there is the power is generated from a thermal station or from a hydraulic generation of electricity, like from the reservoir or dam. Okay. So, we have to transmit a power from A point to B point. There is a transmission line. A transmission line are installed over a large tower and high tower. So, whenever there is a transmission of power from A point to B point, there must be a proper path, proper channel, proper way. So, it is not necessary that wherever we have installed the transmission tower, it is on the land. It may be installed in the middle of the river, in the middle of ocean, and in the middle of the sea. Whenever we have to construct a structure, whether a steel structure or a RCC structure or pillar or any other structure, if it is constructed inside the river or inside the sea or inside any other water body, there must be installation of well foundation over there. The main advantage of well foundation is that it is a monolithic and rigid construction, and it has a massive structure due to which the self stability is high. So, what is monolithic construction? The monolithic construction means the construction done in one go.
okay, then there should not be any joint, okay, there should not be any joint. So monolithic structure is a structure which is constructed inside one go, okay, inside one go, and due to its rigidity and heavy, it is a self sustained or self stable structure, okay. Well foundation can also be conveniently installed in a boulder stratum, wherever the river bed does not consist of a soil, it consists of a rock or boulder, we can easily install the well foundation over there. Well foundation was first originated in India. This is the one of the most important prime moment, that the first use of well foundation is been in India, and one of the most important monument of our country is being constructed on a well foundation, that is Taj Mahal. The main foundation of a Taj Mahal is well foundation. Main foundation of Taj Mahal is an well foundation. We have already discussed that well foundation is a type of open casing. It can be constructed either on the sea, land, rock, soil, whatever the process. At the location where the depth of water is greater than 5 meter to 6 meter, then the velocity of water is high, and wells can be fabricated on the bank and floated to the final position and then grounded. It means that whenever the depth of water depth is more than 5 to 6 meter, which means that velocity of water is high at that point, at that location the velocity of water is high, due to which the in situ installation or in situ construction of a well foundation is difficult, or it is nearly to the impossible. So we have to install or we have to fabricate the well foundation at the bank, and then we transport it to the site where we have to install it, okay. So well foundation can be in situ or can be cast in place. Basically it can be both depending on the situation and ease of construction. Once the well has touched the bed, the sandbags are deposited for increase in self weight. So suppose we have installed the well foundation or caisson over there. So to increase its self stability, we have to increase its self weight. We can't increase after construction. We cannot increase the thickness of the member. So we can inbuild or we can infuse some sandbag or gravel or some pouring the some sand, so that there is an increase in self weight of a well foundation, okay. So now we will study what are the different parts of well foundation. So this is a pictorial representation of a well foundation, a typical representation of a well foundation. It mainly consists of, from top, if we start from the top, it mainly consists of top plug. This is known as top plug, okay. Then this is staining, this one is cutting edge, this one is clip, and this one is a bottom plug or concrete club or cemented concrete plug, okay. This is the bottom plug or cement concrete plug, this is cutting edge, this is staining, this is top plug, and over there is a well cap. This is well cap, okay. So बारी बारी से हम लोग इन सभी का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनिंग के बारे में। व्हाट इज स्टेनिंग? तो स्टेनिंग इट इज द वॉल और शेल ऑफ द वेल मेड अप ऑफ आरसीसी व्हिच ट्रांसफर द लोड टू द कर्व एंड एक्ट एज इंक्लोजन फॉर द एक्सकेवेटिंग सॉइल फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ वेल। सो बेसिकली जो आप ये वर्टिकल मेंबर आप देख रहे हैं, जो एक वॉल की तरह आपको दिख रहा होगा, हम लोगों के एक वॉल की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग स्टेनिंग बोलते हैं। स्टेनिंग का काम क्या है? स्टेनिंग का काम है कि जो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफर करना, वो लोड ट्रांसफर करना, किस पे ट्रांसफर करना? कर्व पे ट्रांसफर करना, इस पॉइंट पे, इस एज पे कर्व पे ट्रांसफर करना, ठीक है। ये मेन है स्टेनिंग का काम। स्टेनिंग का दूसरा पर्पस है वो ये है कि जो आसपास के जो सॉइल है उनको इनक्लोज कर देना, मतलब आसपास के सॉइल को इनक्लोज कर देना, मतलब जहां जिस पोर्शन में ड्रिलिंग चल रही है, जिस पोर्शन में इंस्टॉलेशन चल रहा है, उस पोर्शन के उस एरिया, सपोज करते हैं कि ये जो है ये लोकेशन है जहां हमें फाउंडेशन स्टार्ट करना है। फाउंडेशन तो हमने क्या किया, सबसे पहले ओपन केशन बना के इस एरिया को हमने उन लोगों ने इसको कवर कर लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम पानी बाहर निकाल दिए। अब ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, इसमें हमें वेल फाउंडेशन ले जाना है। तो इतने दूर के एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस स्टेनिंग वॉल जो है, ये वॉल जो है, ये एरिया को क्लोज कर लेगा, इस एरिया को, और इसके अंदर में फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेनिंग का ये पर्पस है। दूसरा जो है जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं। कर्व क्या है? कर्व एक आरसीसी बीम है। कर्व जो है वो एक आरसीसी बीम है, और उसके नीचे में एक स्टील का एज लगा रहता है जिसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अभी कटिंग एज क्या है, लेकिन अगर कर्व की बात करें तो कर्व क्या है, एक आरसीसी का बीम है। आरसीसी का बीम है और वो एज शेप की तरह दिखता है, एज की तरह दिखता है। ये आरसीसी का बीम है, ठीक है, ये आरसीसी का बीम है, ये पूरा जो है ये आरसीसी का बीम है। इसमें जो ये कॉर्नर, ये जो पोर्शन है, ये स्टील का बना रहता है,
ये जो है ये स्टील का बना रहता है, और ये जो पूरा बचा हुआ जो पोर्शन है ये आरसीसी का बना रहता है। बाहर वाला जो पोर्शन वो स्टील का बना रहता है, जो कि बाद में ब्लेड की तरह काम करता है। तो ये बाहर वाला पोर्शन स्टील की बना रहता है, बाकी जो है वो आरसीसी का मेंबर है, आरसीसी का सेक्शन है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो स्टेनिंग से जो लोड आ रहा है, स्टेनिंग से जो लोड आ रहा है वो लोड इस पे जाएगा और ये लोड ट्रांसफर करेगा कंक्रीट के इस प्लग पे, ठीक है। तो कर्व का ये काम है। दूसरा जो पार्ट है कटिंग एज। कटिंग एज नाम से पता चल रहा है कि जब हम ड्रिल करेंगे या जब हम सॉइल के अंदर में इंसर्ट कर रहे होंगे विल को, तो उस केस में उस पॉइंट पे विल क्या करेगा? ड्रिल करते हुए या होल करते हुए, स्कैवेट करते हुए नीचे जाएगा। तो स्कैवेट करने के लिए या कोई भी चीज़ को हमें अगर निकालना है, वहाँ से मिट्टी निकालना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? नाइफ की तरह नाइफ चाहिए होगा। अगर नाइफ क्या होता है? एक शार्प स्टील का, स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है। तो वो क्या करता है? कट करता है। तो सेम पर्पस है कि यहाँ पे एक स्टील का प्लेट लगा रहता है, जो जिस पोर्शन पे जहाँ से हमारा वेल का जो वेल फाउंडेशन जो है वो नीचे जा रहा होगा, वहाँ की मिट्टी को वो कट करता हुआ चला जाएगा ताकि ड्रिलिंग और आसान हो जाए। सेकंड, उसके बाद जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बैकफिल। उसके बाद जो पोर्शन है उसको बोलते हैं बैकफिल। बैकफिल क्या है? बैकफिल नाम से पता चला कि जब एक बार हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया, हम लोग ने वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया और उसमें से पानी को बाहर निकाल दिया, हमने पानी को बाहर निकाल दिया, तो हम उस मोमेंट में क्या करेंगे? उसमें सैंड फिल कर देंगे, ग्रेवल फिल कर देंगे, रॉक फिल कर देंगे, ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। और ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को फिल कर दिया जाए और इसके ऊपर में कैप लगा दिया जाए, जिसको हम लोग वेल कैप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात होती है टॉप प्लग की। टॉप प्लग क्या होता है? टॉप प्लग कुछ नहीं होता। टॉप प्लग एक आरसीसी का या पीसीसी का एक कास्ट किया हुआ एक मेंबर रहता है, एक थिकनेस रहता है, और वो फिल कर दिया जाता है, वो कवर कर देता है पूरा, वो नेट टू नेट रहता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं। उसका वेल कैप क्या होता है? वेल कैप नाम से पता चल रहा है कि जब हमारा पूरा हमने पूरा बैकफिल कर दिया और प्लग लगा दिया, टॉप प्लग लगा दिया, बॉटम प्लग इंस्टॉल कर दिया, हमारा पूरा काम खत्म हो गया, तब हम ऊपर में क्या करेंगे? एक आरसीसी का स्लैब कास्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे वेल कैप। वेल कैप का काम क्या है कि वेल कैप जो है वो सबसे पहले लोड बियर करेगा, जो कि सुपर स्ट्रक्चर से उस पर आ रहा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वेल कैप। मिनिमम थिकनेस जो वेल कैप की होती है, इट इज अबाउट 75 सेंटीमीटर और 750 mm। जो मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए वेल कैप की वो 750 mm होनी चाहिए या 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल फाउंडेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल फाउंडेशन में वेल फाउंडेशन के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट किए गए हैं वो किए गए ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ वेल फाउंडेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेल फाउंडेशन। सर्कुलर वेल नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर मतलब कि एक सर्कुलर शेप में इसका शेप दिख रहा होगा, इसकी क्रॉस सेक्शन जो होगी वो सर्कुलर शेप में होगी। सर्कुलर वेल का जो है उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सर्कुलर वेल्स आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इजी टू सिंक एंड रिक्वायर मिनिमम स्टेनिंग थिकनेस ड्यू टू द लोअर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस देन अदर टाइप। जो ये स्टेनिंग है, ये जो वॉल होगा, ये इस वॉल क्या है? ये स्टेनिंग है, ये स्टेनिंग है। तो सर्कुलर में सबसे पहला क्या है कि इसको ड्रिल करना या इसको सिंक करना, जिसको ड्रिलिंग मतलब सिंक करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टेन जो है इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। इसकी थिकनेस कम होने के पीछे रीज़न क्या है? इसकी वो रीज़न इकलौता रीज़न है कि इसमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कम डेवलप होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसमें स्टेनिंग की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, ठीक है। दूसरा बात है कि सर्कुलर वेल हैज़ द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वेट लीडिंग टू ग्रेटर सिंकिंग एफर्ट अवेलेबल। जो हमारा सर्कुलर वेल है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, इसका जो सरफेस एरिया मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। अगर एक पर्टिकुलर वेट की बात करें, अगर 100 किलोन्यूटन 100 किलोन्यूटन की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट शेप, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो सरफेस एरिया है वो सर्कुलर का सरफेस का कम होता है, जिसमें जो सिंकिंग एफर्ट होगा अवेलेबल होगा वो बहुत कम लगाना, मतलब आराम से हम उसे सिंक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है सर्कुलर वेल जो है पोसेस हाई स्ट्रेंथ और सब्जेक्टेड टू लो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ शार्प कॉर्नर। सिंस यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं होता, ये जो पूरा सरफेस है ये कंप्लीट बेंड है, तो जिसकी वजह से एक कोई भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, ड्यू टू यहाँ पे कोई फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। उसके बाद इसको सिंक करने के लिए आपको मल्टीपल साइड से ड्रेज नहीं, यानी कि एक्सकावेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही साइड से एक्सकावेट करते हुए आप नीचे सिंक कर सकते हैं। तो ओनली वन ड्रेजर आर अवेलेबल, ठीक है। अगर दूसरी बात है कि एवरी पॉइंट ऑन द कटिंग एज इज कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ड्रेज होल एंड चांसेस ऑफ टिल्टिंग ऑफ वेल ड्यूरिंग द सिंकिंग आर लेस। मतलब इसमें जो सिंक करने के लिए जो ड्रेज रहा होगा वो ड्रेज का जो डिस्टेंस होगा वो कटिंग एज से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ड्रेज कहीं यहाँ पे इंस्टॉल रहा होगा,
तो अगर कटिंग एज यहाँ से तो वो हर एक उसके रेडियस के डिस्टेंस के बराबर में होगा, रेडियस के डिस्टेंस के बराबर, जिसके से क्या होगा कि यूनिफॉर्म सिंकिंग हो रहा होगा और कोई टिल्टिंग नहीं होगी। वेल फाउंडेड वेल में कोई टिल्ट नहीं आएगा, एक कांस्टेंट सिंक होता चला जाएगा। ठीक है, सर्कुलर वॉल जो होता है दैट ऑफर्स ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द लेटरल लोड ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये लेटरल लोड को ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल जो होता है वो जनरली लिमिट किया जाता है कि 9 मीटर से ज़्यादा का डायमीटर का सर्कुलर वेल हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे या कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। दूसरा टाइप का जो फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन है, इट इज़ ट्विन सर्कुलर वेल। नाम से पता चले बाकी सारा फेनोमेना सेम होगा, बस इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा बॉक्स रहेगा, ये जो पूरा रहेगा, ये पूरा जो रहेगा वो एक सर्कुलर वेल नहीं रहेगा, ये दो वेल रहेंगे, ट्विन, तभी नाम है ट्विन। यानी कि एक साथ में 2 वेल सिंक होंगे, एक साथ में 2 वेल सिंक होंगे, जहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होगा ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कम हो और फाउंडेशन सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कम है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ट्विन सर्कुलर वेल करेंगे। जो मेन डिसएडवांटेज है उसमें ये है कि इसमें सिंस 2 अलग अलग वेल हैं तो इसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होगा, सिंस 2 अलग अलग वेल हैं तो इसमें जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा वो ऑब्जर्व होगा और टिल्टिंग भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ड्रेज होगा वो अलग होगा और यहाँ का जो ड्रेज होगा वो अलग होगा, तो दोनों की स्पीड अलग हो सकती है मे बी, या दोनों का शार्पनेस अलग होगा, तो जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिंकिंग जो होगा वो देखने को नहीं मिलेगा और वो टिल्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे की तरह से एक दूसरे के लेवल में नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर वेल। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर शेप की तरह अगर हमारा वेल है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की तरह है, तो हम उसको हम बोलेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेल। इसकी जो डेप्थ होगी, अगर फाउंडेशन की डेप्थ अप टू 8 मीटर तक है तो ही हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेल का यूज़ करेंगे। जो लार्ज साइज ऑफ पिलर्स हैं या पायर्स हैं या एबैटमेंट है, उसके लिए जो डबल रेक्टेंगुलर और या रेक्टेंगुलर वेल्स का यूज़ किया जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ड्यू टू वेरी हाई स्ट्रेनिंग, क्योंकि इसके स्ट्रेनिंग की थिकनेस क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से इसमें बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि सर्कुलर वेल में स्ट्रेनिंग की थिकनेस कम होती है क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। लेकिन रेक्टेंगुलर में कॉर्नर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर, जिसकी वजह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डेवलपमेंट की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से उसमें स्ट्रेनिंग की थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ती है, और जैसे ही स्ट्रेनिंग की थिकनेस ज़्यादा होती है तो सिंकिंग में हमें प्रॉब्लम ऑब्जर्व करने को मिलेगा, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है तो सॉइल को ज़्यादा जो प्रोसेस सिंकिंग के प्रोसेस में प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा सिंक करने के लिए, वो ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा। और सिंस इस प्रॉब्लम की वजह से इसमें टिल्टिंग भी ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं, टिल्टिंग भी ऑब्जर्व करने को देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं डबल डी सेक्शन वेल। डबल डी सेक्शन मतलब कि इसमें एक, जैसे ये डायग्राम से पता चल रहा है, एक तो ये डी है और दूसरा ये डी है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया डबल डी। डबल डी जो है वो रेक्टेंगुलर और या जो डबल रेक्टेंगुलर है या डबल स्क्वायर वेल है, उनका अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन क्या है, इसमें 2 फायदा है। पहला फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई शार्प एजेस नहीं है। अब जैसे ही शार्प एजेस नहीं है, इसका मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कम होगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कम होगा तो इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कम होने का जो मतलब है वो इकलौता मतलब है कि इसमें जो ड्रेज होल होंगे, इसमें जो ड्रेज होल आपको देखने को मिलेंगे ये कम देखने को मिलेंगे। 2 ड्रेज होल एक साथ आराम से सिंक करते हुए चला जाएगा। दूसरा होगा कि डबल जो रेक्टेंगुलर है या ऑक्टागोनल वेल है वो लार्जर सिंकिंग एफर्ट देखने को मिलता है रेक्टेंगुलर में, क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्ट्रेनिंग थिकनेस ज़्यादा होती है ज़्यादा। लेकिन अगर डबल डी वेल है तो इसमें जो सिंकिंग एफर्ट है, जो कि मैं सिंकिंग प्रेशर की बात कर रहा था, वो कम देखने को मिलता है, कम ऑब्जर्व करने को मिलेगा। मतलब बहुत ही आराम से हम लोग इसमें सिंक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है द डिसएडवांटेज जो है डबल डी का ये है कि बेंडिंग मोमेंट आर लार्ज ऑन द स्टेनिंग। जो स्टेनिंग का पॉइंट है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी ना कहीं आपको कॉर्नर देखने को मिलेगा। ट्राई किया गया कि जो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शार्पनेस है उसको एलिमिनेट किया जाए, लेकिन आप 100% तो एलिमिनेट नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं तो कॉर्नर या शार्पनेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंकिंग एफर्ट आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के जो टाइप्स वेल फाउंडेशन पढ़ेंगे, दैट इज हेक्सागोनल एंड ऑक्टागोनल वेल। नाम से पता चल रहा है कि अगर हेक्सागन यानी कि 6 फेस है या ऑक्टा मतलब 8 फेस है, तो उस टाइप के वेल फाउंडेशन को हम लोग हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल वेल फाउंडेशन बोल सकते हैं।
हेक्सागोनल और वेल फाउंडेशन का जो एडवांटेज है दैट इट हैज़ द शार्प कॉर्नर प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द टू ड्रेस होल। इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें शार्प कॉर्नर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे ये जंक्शन है, यहाँ पे बहुत ही शार्प एजेस है। और जहाँ पे शार्प एजेस आ गया यहाँ पे आप क्या करेंगे, कटिंग वेज लगा देंगे। जहाँ पे शार्प एज आ गया यहाँ पे आप कटिंग एज लगा देंगे, और कटिंग एज लगा देने की वजह से क्या होगा कि इसमें सिंकिंग एफर्ट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, सिंकिंग एफर्ट थोड़ा कम होगा। ठीक है, जो डबल डी में प्रॉब्लम आ रही थी, डबल डी में आ रही थी कि सिंकिंग एफर्ट ज़्यादा हो रहा था ड्यू टू स्ट्रेनिंग पे स्ट्रेस ज़्यादा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो रहा था, यहाँ पे हमने उस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया। हाउएवर द सरफेस एरिया डबल डी सेक्शन से ज़्यादा है विच इंक्रीज द रेसिस्टेंस। सिंस सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है तो रेसिस्टेंस तो सिंकिंग होगा, लेकिन सिंकिंग एफर्ट कम हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि कटिंग एज बहुत ही शार्प है, बहुत ही आसान से हो जाएगा, लेकिन सिंकिंग के रेसिस्टेंस यानी कि जो मिट्टी का एक्सकैवेशन हो रहा होगा, वो मिट्टी जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रही होगी या रॉक जो ऑफर कर रहा होगा, वो रेसिस्टेंस हमारा कम हो गया है। डबल सेक्शन डबल हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल सेक्शन एकोमोडेट द फुल विथ ऑफ द ब्रिज मोर इकोनॉमिकली देन अ सिंगल सेक्शन। आप अगर सिंगल रेक्टेंगुलर या सिंगल सर्कुलर या डबल सर्कुलर वेल फाउंडेशन बना रहे हैं, लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर आप शेप ऑफ डबल ऑक्टागोनल या डबल हेक्सागोनल यूज कर रहे हैं, तो जो पायर की साइज होगी वो बहुत इजीली एकोमोडेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल यूनिट रेक्टेंगुलर के या सर्कुलर के। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन कैलकुलेट किया जाता है, वो मेनली 3 फैक्टर से कैलकुलेट किया जाता है। जो पहला फैक्टर होता है वो होता है मैक्सिमम स्कॉट डेप्थ बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल, दूसरा होता है मिनिमम ग्रिप लेंथ बिलो द स्कोर लेवल, और अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी। ये 3 मेजर फंडा है जिससे कि हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट करते हैं। जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट किया जाता है वो होता है सम ऑफ मैक्सिमम स्कोर डेप्थ एंड मिनिमम ग्रिप लेंथ। मैक्सिमम स्कोर डेप्थ और मिनिमम ग्रिप लेंथ। तो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ कैसा होता है? बेसिकली जो मैक्सिमम स्कोर डेप्थ होता है ये हम लोग पढ़ते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, और इस इरिगेशन इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है लेसीज थ्योरी का, एक कॉन्सेप्ट आता है लेसीज थ्योरी का, हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक छोटा सा उसका यूज करेंगे। तो जनरली जो स्कोर डेप्थ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो लेसिस सिल्ट फार्मूला से होता है। वो सिल्ट फार्मूला को मॉडिफाइड किया, किन्होंने मॉडिफाई किया? IRC 78/2000 ने मॉडिफाई किया। उनके हिसाब से जो फार्मूला होगा वो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि स्कोर डेप्थ कितना होगा फ्लड लेवल के नीचे। तो स्कोर डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्कोर डेप्थ निकालने का फॉर्मूला DS = 1.34 Q²/F⁻³ जहाँ पे Q जो है वो डिजाइन डिस्चार्ज है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, और F जो है वो सिल्ट फैक्टर है। ठीक है, आप अगर F की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो F के लिए आपके पास फॉर्मूला F इक्वल टू होता है 1.6 √DM, 1.6 √DM, जहाँ पे DM क्या है? मीन पार्टिकल साइज अवेलेबल। मीन पार्टिकल साइज कितना अवेलेबल है ये, यानी कि अगर आपको डेप्थ ऑफ स्कोर निकालना है बिलो द मीन सी लेवल, हाई फ्लोर लेवल, तो 1.34 Q²/F⁻³ और उसमें F की वैल्यू क्या थी? F जो है वो सिल्ट फैक्टर है। सिल्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1.6 √DM करके। ओके, उसके बाद बात करते हैं ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ क्या होता है? ग्रिप लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट करने में। द ग्रिप लेंथ, द डेप्थ ऑफ बॉटम ऑफ द वेल फाउंडेशन बिलो द लोएस्ट स्कोर लेवल इज नोन एज ग्रिप लेंथ। मतलब लोएस्ट स्कोर लेवल से फाउंडेशन का डेप्थ कितना नीचे है उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं ग्रिप लेंथ। सपोज करते हैं कि एक फिनोमेना लेते हैं कि ये है हाईएस्ट फ्लड लेवल और ये है हमारा स्कोर डेप्थ। तो ये जो डेप्थ होगा जहां पे फाउंडेशन रेस्ट कर रहा होगा, इसी डेप्थ को हम लोग बोलेंगे ग्रिप लेंथ। इसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे क्या? इसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे ग्रिप लेंथ, जहां पे फाउंडेशन रेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, द वेल फाउंडेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद द एडिक्वेट ग्रिप लेंथ सच दैट द रिक्वायर्ड पैसिव रेसिस्टेंस ऑफ द सॉइल ऑन द रेयर साइड ऑफ द वेल इज जनरेटेड टू रेसिस्ट द लेटरल लोड। अगर सफिशिएंट ग्रिप लेंथ नहीं रहेगा, सपोज करें कि यहाँ तक वेल फाउंडेशन है हमारा, ये वेल फाउंडेशन बना हुआ है, तो जो ये वेल फाउंडेशन का रेयर साइड है, यानी कि ये पोर्शन ये पोर्शन पे लेटरल लोड आ रहा होगा। इस लेटरल लोड को रेसिस्ट कौन करेगा? तो ये रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अगर सफिशिएंट ग्रिप लेंथ नहीं है तो लेटरल लोड के लिए रेसिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, तो डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन शैल नॉट बी लेस देन 1.3 टाइम्स ऑफ डीपेस्ट स्कोर डेप्थ बिलो द सी लेवल। मतलब जो हमारा स्कोर डेप्थ है, जो डीपेस्ट स्कोर डेप्थ है, उससे 1.33 टाइम्स कम बिलो सी लेवल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन IRC 45/1972 ने फाउंडेशन के लिए बोला है कि एटलीस्ट ट्वाइस भी अगर इस मैक्सिमम स्कोर डेप्थ से हम करते हैं तभी हमारा वेल फाउंडेशन क्या होगा? सेफ होगा। उसके बाद बात करें थे, तीसरा फैक्टर था अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी का। अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी के लिए तो डेप्थ ऑफ वेल फाउंडेशन जो होगा दैट इज
defined as that will be based on maximum pressure लेस देन द अलाउबल बेयरिंग सॉइल कैपेसिटी ऑफ द और द रॉक एट दैट लेवल। मतलब जो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम प्रेशर, जितना मैक्सिमम प्रेशर जो कि रॉक या सॉइल बेड जो है वो ऑफर कर रहा होगा फाउंडेशन को, उस पर भी डिपेंड करना चाहिए। तो उसके लिए IS 395 ने दिया है, IS 395 ने दिया है कि मैक्सिमम प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू QA इक्वल टू 5.29 N स्क्वायर बी प्लस 16D 100 प्लस N स्क्वायर, जहाँ पे N जो है वो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर है, D जो है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और B जो है वो स्मॉलर डायमेंशन ऑफ वेल फाउंडेशन, चाहे उसकी विड्थ ले, लेंथ एंड विड्थ ले, इन सब में से जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन होगा उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।